وہیں پہ رہے وہیں پہ رہے یہ لے یہ پکڑا ادھر پکڑا بٹ صاحب مجھے پکڑیں اور کیمرے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ابھی سارے کیمرے آ جائیں نہیں سیٹنگ کر لو پھر تھوڑے پیچھے تھوڑا سا یہ ایک منٹ اقبال بھائی کارڈ دینا آپ مجھے اپنا ادھر آ کے مائک پکڑنا یہ پہ جلدی دینا کرے جی پیارے بھائی مائک دے دیا سے پیار بھی کرتے میرا مائک دے دیا ہے مائک تھوڑا دے تھوڑا سر آگے کیجیے گا مائک پیکا وہی تھا کہ آپ نے سب کو سب یہاں سے مجھے علی مراد کے بعد آپ لوگوں نے عزت دی آپ کی آواز تھے جی آج دوبارہ ایک دفعہ پھر عدالت حاضر ہوئے ہیں اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹی ایف آئی آریں یہ جب سے امپورٹڈ سرکار آئی ہے یہ جو خود جن پر کیسز تھے نیب کے کیسز تھے ایف آئی اے کے کیسز تھے یہ جو امپورٹڈ سرکار کا یہ جو کرائم منسٹر آیا ہے جو جب سے بیٹھا ہے حکومت میں اس پہ خود ایف آئی آریں تھیں یہ خود مطلوب تھا اور جس دن حلف لے رہا تھا اس دن بھی پیشی تھی اور آج کوئی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے آج خوف پھیلانے کے لیے آپ بتائیں کہ بلاسمی کے کیسز کر دیے ہیں مدینہ میں واقعہ ہوتا ہے اور کیسز ہم پہ یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ بلاسمی کے کیسز آپ سیاسی لوگوں پہ ڈال دو اسی طرح جو ایک جمہوری ہمارا حق تھا پاکستان میں کہ ہم آواز بنے عوام کی ہے جو ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ پاکستان میں جس طرح امریکہ کی ایما پر سازش کے تحت یہاں پر عمران خان کی ایک منتخب حکومت کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قومی اسمبلی میں ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی اور امریکہ میں 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر ڈیفنس اٹاچی کو بلا کر جس طرح کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کو ہٹایا جائے ورنہ پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی اور وہ ہماری اتحادی جماعتیں جو ایک دم اشارہ ملتے ہی مہنگائی کا بہانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری طرف گئیں اور لوٹا کریسی ہوئی کروڑوں روپے چلے قومی اسمبلی میں اس پہ کوئی کیس نہیں بن رہا وہ جن پر نیب کے کیسز تھے وہ سارے چور لٹیرے منی لانڈرز آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت جو 3.5 سال میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا پاکستان کی تاریخ کا عمران خان کی حکومت نے 6,000 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا انہوں نے اس کووڈ جو دنیا میں کئی صدی کے بعد اس طرح کی وبا آتی ہے پوری دنیا کا جی ڈی پی گر گیا پاکستان کی تاریخ کا تیزی سے ابھرتا ہوا 6% جی ڈی پی تھا صنعتیں بحال کرائیں ایکسپورٹ بڑھائی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان آیا پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج سب سے زیادہ اوپر گیا یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں ملی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ بڑھی آپ کی جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی وہ بوم ہوئی کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ دیا لوگوں کو جابز ملی سیمنٹ سب سے زیادہ بکا پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں بکی گاڑیاں بکی ٹریکٹر بکے
10 बड़े डैम बनाने की तरफ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। एहसास प्रोग्राम में गरीबों की मदद की। कोविड के दौरान 12-12 हजार रुपए लोगों को दिए। आपने देखा बगैर किसी सियासी इम्तियाज के, रंग और नस्ल के, हमने 10 लाख रुपए का लोगों को हेल्थ कार्ड दिया। आज हेल्थ कार्ड बंद कर रहे हैं। आज 12,000 से 2,000 रुपए कि जिसके अंदर आपने देखा 85 रुपए से ज्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, 115 रुपए डीजल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, यहाँ पर 45% गैस महंगी कर दी। आज गरीब किधर जाएगा आप मुझे बताएं। अब तो पहली दफा कंपैरिजन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। लोगों को पता चला 3.5 साल में इमरान खान महंगाई और गरीब आवाम के दरमियान दीवार बना हुआ था, रोक रहा था, सब्सिडी दे रहा था लोगों को, गरीबों की मदद कर रहा था, अमीरों से टैक्स ले रहा था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इतना टैक्स जमा किया। उस हुकूमत को जो मईशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत कर रही थी, दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत कर रही थी, इस रीजन में पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो इमरान खान के दौर में सस्ता पेट्रोल दे रहा था, सस्ती चीजें दे रहा था। आज एहसास होता है लोगों को, आज लोग चीखे मार रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं इन लोगों को, इन घुसपैठियों को कि क्या कर रहे हैं अवाम के साथ। कोई मईशी प्लान नहीं है इनके पास, इनको पता नहीं है हुकूमत किस तरह चलानी है। आज लोगों को दबाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, जिस तरह 25 मई को इन्होंने सियासी कारकुनों के घरों पे छापे मारे, जिस तरह ख्वातीन के घरों पे छापे मारे, और जिस तरह इन्होंने बदतरीन शेलिंग की पाकिस्तान की तारीख की, कंटेनर्स लगाए, रबड़ की गोलियां चलाई, मैं समझता हूं मकबूजा कश्मीर में भी वो जुल्म भारतीय नहीं कर रहे थे जो इन्होंने 25 मई को किया। कल का एहतजाज पूरे पाकिस्तान ने देखा। वाहिद लीडर इमरान खान जिसकी कॉल पे पूरा पाकिस्तान आज निकल रहा है। लोग इस इंपोर्टेड सरकार को नामंजूर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके पास कोई मईशी प्लान नहीं है। पाकिस्तान बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, हम सब फिक्रमंद हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि वाहिद हल फिल फौरी इंतखाबात हैं, साफ शफाफ, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट के जरिए लेके आए, ना कि अमेरिका की ईमा पर। पाकिस्तान हकीकी आज़ादी चाहता है और वो साफ और शफाफ नए इंतखाबात से होगी इंशाल्लाह। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, ये जो राना सनाउल्लाह, ये जो समझता है कि वो अवाम को दबा देगा, कभी भी अवाम इनके इस जुल्म से आज जो अदालतों में घसीट रहे हैं, 30-30 मुकदमे कर दिए हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम पर, लोगों पर, कारकुनों पर 150 नामालूम अफरादों की लिस्ट बना दी है खौफ फैलाने के लिए। इनके किसी भी खौफ में नहीं आएंगे, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह हर सतह पर। और ये जो नैब के कानून बदल रहे हैं, ये जो ओवरसीज का वोट का हक खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोटों की ताकत से आएगी, इस महंगाई को खत्म करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैक पर लेकर जाएगी जो इन 3.5 सालों में लेकर गई। और पूरे पाकिस्तान के वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ज़र मुबादला बेचते थे, उनको इंशाल्लाह वोट का हक भी देंगे, गरीब की आवाज भी बनेंगे और इन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे, दोबारा नैब को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो समझ रहे हैं कि हम शायद अपनी चोरियां छुपा लेंगे, एक एक को अवाम जानती है जो जुल्म और ज्यादतियां कर रही हैं, इस मौरूसी सियासत का इंशाल्लाह खात्मा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बता दें कि आपने कहा साजिश हुई है, DGISPR कह रहे हैं ना साजिश हुई है ना मुदाखलत हुई है, कौन सच बोल रहा है? क्या पाक फौज सच बोल रही है या पीटीआई सच बोल रही है? देखें, पाक फौज पाकिस्तान का एक इदारा है, उसकी हम सारी कदर करते हैं, लेकिन आपने देखा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ 2 दफा, वो सियासी क़यादत उसको चेयर करती है। जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे उन्होंने चेयर किया और उसके अंदर जो आपने देखा डिमार्च किया, बाकायदा उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है, जब साजिश कामयाब होती है तो फिर मुदाखलत होती है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि मुदाखलत हुई है। पाकिस्तान में उस रजीम को लेके आया अमेरिका जो घुटने टेकता है, जो डू मोर बोले तो उसी टाइम झुक जाते हैं। ये उस करप्ट लोगों को लेके आए हैं जो पाकिस्तान को मईशी तौर पे कमजोर करे, जो पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना इस्लामी फलाई रियासत,
वाहिद मुल्क है दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर बना है। जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे तो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बने पूरी मुसलमान उम्मा की। उन्होंने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का केस लड़ा, उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की। रशिया गए, आज हिंदुस्तान सस्ता पेट्रोल कर रहा है अपने मुल्क में, और पाकिस्तान में यहाँ पे जुल्म के पहाड़। ये 15 दिनों के अंदर क्या हो गया इस मुल्क को आखिर? जब घर में भी चोर घुस जाए तो 2 घंटे में घर को खाली कर देते हैं। ये वो चोर हैं जो इस मुल्क की हुक्मरान बने हैं। आते साथ इन्होंने अयाशियां शुरू कर दी हैं। आज वजीर आजम को कुछ अवाम की नहीं पड़ी, उसको अपने स्विमिंग पूल की पड़ी है कि किसी तरह वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल बन जाए। आज मरियम सफदर किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल में फिर रही है, गाड़ियों में फिर रही है? उसके पास क्या है? उसके पास कैंप हाउसेस आज बन रहे हैं। किस वजह से? इमरान खान साहब कफायत जारी कर रहे थे कौमी असम्बली में पिछले साल 1 अरब 44 करोड़ रुपए की बचत की। हम तो कौमी असम्बली में चाय भी अपनी जेब से पिलाते थे लोगों को, पानी भी पिलाते थे। आज याशियां शुरू हो गई हैं दोबारा। आज स्पीकर हाउस में नए वॉशरूम्स बन रहे हैं। किस वजह से? अवाम के पैसे की, टैक्स के पैसे की कदर नहीं रही। इमरान खान टैक्स के पैसे को गरीबों की अमानत समझता था, आज ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। आज गरीब की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बताएं किस तरह ये बिजली के बिल देंगे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद? किस तरह अपना खर्चा पूरे करेगा गरीब? हर चीज महंगी हो गई है, तेल, घी, चीनी, हर चीज। आज सांस लेने पर एक टैक्स नहीं है। हमारी हुकूमत ने भी तो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान की तारीख का। इस तरह तो नहीं किया। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। तो ये मुल्क किस तरह चलेगा? ओवरसीज अपने रेमिटेंस निकाल रहे हैं रोशन डिजिटल पाकिस्तान से। मायूस हो गए हैं इससे कि चोर आ गए हैं। आज क्या इज्जत रह गई आपकी पूरी दुनिया के अंदर? वो पूरी दुनिया को पता है कि जो वजीर आजम बना है इस पे केसेस हैं। आज मकसूद चपड़ासी के साथ लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जो वो गवाह थे। आज आप मुझे बताएं क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? आज सब लोगों को, वो लोग किस तरह मर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई किस तरह मर रहा है। आज गवाह भी ये साफ कर रहे हैं, ये तो आग लगा देंगे तमाम सबूतों को। इन्होंने पहले भी यही किया, लेकिन इमरान खान और उसकी टीम कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन चोरों को 22 करोड़ आवाम इबरत का निशान बनाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सारा कुछ उन्होंने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब की जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है, और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे। ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरे भाई कासिम सूरी ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े सिंपल अल्फाज में घुसपैठियों को और उनके हरबों को और उनके करतूतों को और उनकी ओवरऑल जो सोच है उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसे डरा रहे हैं ये। अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको कचहरियों और थानों के चक्कर दिलवा के डरा देंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान और उनकी टीम, और ख़ासकर हमारी जो लीगल टीम है जो यहाँ पे मौजूद है, सलाम है इनकी कमिटमेंट को। इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, और ये जिस तरीके से एक वर्कर सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं, फोर फ्रंट पे आए। और फिर अब मैसेज आपके लिए है कि हमारे साथ हुआ क्या है बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। हमारे तो लोगों को कब्रों से निकाल के लटकाया गया, हमारे प्यारों के गले काटे गए, हमारे लोगों को आईडीपीज बनाया गया, हमारी माओ बहनों के सरों से चादर गई, कैंपों में गए। तब तक उस वक्त भी हम लोग इस मुल्क और इस मुल्क के मुस्तकबिल और इस मुल्क की सलामती की दुआएं मांगते थे, क्योंकि सबसे बड़ी जंग कबाइल और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स की मदद से लड़ी गई। उस वक्त नहीं घबराए जब हमें डराया जाता था। अब ये डराएंगे, और डरा कौन रहा है? जिनके अपने किरदार दागदार हैं, जो खुद तार तार हैं, जिनका कोई किरदार ही नहीं। अब आज अल्लाह की रहमत बरस रही है, जिस तरह रब की रहमत बरस रही है, इंशाअल्लाह इनके करतूत,
इन तमाम घुसपैठियों को रब्बे जुल जलाल अपने किए किराए में उस कब्र में खुद ये सारे दफन हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई इनको आ लग रही है। किसकी? उनकी जिनकी रब सुनता है, वो जो दिहाड़ीदार है, वो दिहाड़ीदार जिसके लिए इमरान खान ने लंगर खाने उसको उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी दी। आज ये लोग जो कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं? हराम का माल कमाने वाले को क्या फिक्र कि लोड शेडिंग क्या चीज है, महंगाई क्या चीज है, खुर्दोनोश की अशिया मिले या ना मिले, उस पर जुल्म हो या ना हो। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो गैरों के इशारों पे चलते हैं। तो आज मैसेज ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को ये ना डरा सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब वक्त ये है कि इस मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम को उठना पड़ेगा। तमाम मैं आज पूछना चाहता हूं JUI, ANP, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि आप लोगों के घरों के चूल्हे, आपके घरों के अंदर जो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो तमाम जो आजमाइश और इस्तिराब में से गुजर रहे हैं, क्या वो ये नहीं समझ रहे कि इनका मकसद क्या है? अपनी औलादों को ओहदे देना, अपनी ज़ात की तकमील और ख्वाहिशात की तकमील, अपनी दौलतों को छुपाना और उन दौलतों को जो बाहर हैं उनमें इजाफा करना। इनको मुल्क की सलामती, मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर खुशहाली की कोई फिक्र ही नहीं है। तो एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें डरा नहीं सकते, ना झुका सकते हैं। कौम बड़ी गैरतमंद है और इमरान खान की टीम जो है सर गवा देगी, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पे कभी भी सौदेबाजी का ना तसव्वुर कर सकते हैं। हम फलसफा हुसैन जालिम के आगे खड़े, एक तो ये राना सनाउल्लाह है, इसके साथ जितने हैं उन सब। और फिर मैं आज एक दफा फिर आज सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुमोटो एक्शन लें। अगर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मनशियात का केस बना था 15 किलो, अगर वो आज ट्रायल से भाग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले। एक ऐसा शख्स वजीर दाखिला बना बैठा है। आज मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि वो लोग जो प्रोग्राम्स में मुझे मेरे बारे में कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है और ये कस्में खा रहा है, तो वो ANF, वो मेजर जनरल, वो तमाम ब्रिगेडियर्स जो RD के हेड्स थे, जिन की मौजूदगी में तमाम सबूत थे। आज मेरा सवाल एक दफा फिर ये है कि एक शख्स जो मुनशियात इलिसिट ड्रग्स के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर कैसे बना बैठा है, और वो जिसने लोगों की बेटियों, कौम की बेटियों में मुंह में गोलियां मारी मॉडल टाउन, वो शख्स जिसके ऊपर खुद अपना फैसलाबाद का शेर अली के वालिद साहब क्या कहते हैं कि 21 कत्ल किसने किए हैं, वो शख्स जिसके जो एक नासूर है इस मुल्क के लिए, वो ना हमें डरा सकता है। लेकिन मेरी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर हम कानून और आइन के पाबंद हैं, अगर हम कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, उन 2 नंबर FIR जिसकी कोई बेस नहीं है, जो अपनी जाती मफाद के लिए अगलों को जलील कराना या डराने का जो इन्होंने जो ये रवैया अपनाया हुआ है, तो आज ANF को हेड कौन करता है? मेजर जनरल। तब कौन करता था? मेजर जनरल। आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह किस तरह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, पहले ट्रायल हो, तमाम वो गवाहान और वो तमाम लीगल प्रोसेस, 17 दिन तक तमाम सबूत अदालत में जमा होते हैं, 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है। आम आदमी का ट्रायल शुरू हो रहा है, राना सनाउल्लाह का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा? इस पर यही वो चीज है जो मुल्क को तकसीम करती है, यही वो चीज है जो अमीर और गरीब, अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून। तो आज एक दफा फिर ये मैं बावर कराऊं, इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ से और इमरान खान और उसकी टीम से, अल्लाह के फजल से ये घुसपैठिए, ये जो मुल्क का माल लूट रहे हैं, ये इंशाअल्लाह कभी नहीं बचेंगे। और इंशाअल्लाह हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और आज़ाद इलेक्शन से 2/3 मेजॉरिटी से इस पाकिस्तान को इमरान खान की लीडरशिप में अल्लाह ऐसी इज्जत देगा कि कौमें पाकिस्तान से सीखेंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त पूरी यूथ है, खान साहब एक आवाज़ मारते हैं पूरा मुल्क जो है वो जाम कर सकते हैं,
लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं साजिश हो रही है, ISPR कह रही है साजिश नहीं हो रही, अवाम को गुमराह कौन कर रहा है? देखिए जी, अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की बुनियाद है। 85 लॉन्ग कोर्स JC24। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि डिमार्च क्यों किया गया, डिमार्च क्यों किया गया। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क का आईन कुरान और सुन्नत किताबें है। इस्लामोफोबिया के लिए किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? नामूसे रिसालत के लिए आवाज किसी ने क्यों नहीं उठाई? आम पाकिस्तानी खजाना जात के लिए इस्तेमाल होता था, वही खजाना अवाम के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। मैं आज सिर्फ ये एक दफा बात आखिर में फिर क्लियर करना चाहूंगा, मुदाखलत तब होती है जब साजिश कामयाब होती है, और इसकी तशरीह सब ने की है। एंड में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ना मुदाखलत ना साजिश। याद रखें, जो खैर आपके मुल्क के मेंबर के, आपके बुजुर्गों के, आपकी माओ बहनों के, आपके खानकाह के, इमाम बारगाह के, मस्जिद के, जब वो फैसले करने शुरू करें तो ऐसी कौम पर रब का कभी भी करम और रब की रहमतें नहीं आती। ऐसी कौम इबरत बनती है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है। इंशाअल्लाह इस आजमाइश से निकलेंगे। इसीलिए खान आज पूरी दुनिया के आगे डटा हुआ है। सिर्फ किसके लिए? इंसानियत के लिए। वो कहते हैं मैं पार्टनर इन पीस हूं, मैं किसी का सबसर्विएंट नहीं बनूंगा। आज हिंदुस्तान पेट्रोल ले रहा है, पाकिस्तान पर पाबंदी है क्योंकि मैं उसका गुलाम हूं। इस गुलामी को तोड़ने के लिए इमरान खान ने आवाज उठाई थी और इसको हम तोड़ के रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुमराह कौन करे ये बता दें, कौन को गुमराह कौन करे? आप नाम लेना। मीडिया को, आपको, पूरी कौम को पता है। अगर आप ये समझेंगे कि मैं इश्तिहाल में कुछ कह दूंगा, मुझसे ज्यादा आपको पता है, आप कौम को बताएं कि कौन कर रहा है। इंशाल्लाह हो गया 10